Hello friends, under the chapter number 3, Theory of Consumer Behavior, we are studying the measurement of utility. We are studying the measurement of utility, and under this chapter, we are seeing there are two approaches, cardinal approach and ordinal approach. Under cardinal approach, in the last videos, whatever we have studied, like utility, meaning and assumptions, first point. Second, that relationship between total utility and marginal utility. Third point, law of diminishing marginal utility. Fourth point, consumer equilibrium in the case of single commodity and the case of double commodities. Already we have seen all this approach, cardinal approach. Under the topic measurement of utility, under the chapter number 3, which is theory of consumer behavior. My dear students, in this lecture we are going to see a different approach, which is ordinal approach. Means in the measurement of utility through indifference curve. The measurement of utility through indifference curve. First of all, we will see the meaning and assumptions of indifference curve in this lecture. My dear students, this is the most important topic under this chapter. Okay, indifference curve. Indifference curve analysis, meaning, and after this we will see the first topic is what indifference curve, meaning and assumptions. Second, properties of indifference curve. Properties of indifference curve. Third topic is consumer equilibrium through indifference curve analysis, and fourth, buzzard line. Again I am repeating this. You can see in detail in the first lecture of the measurement of utility. So my dear friends, see here the definition of indifference curve. How can we define the indifference curve? Okay, the definition of indifference curve, it's in your own words. It's in the very simple words. बहुत आसान डेफिनेशन है और बहुत ही अपने आप के वर्ड्स में डेफिनेशन है. क्या है? इंडिफरेंस कर्व. हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं. ओके, तो व्हाट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. किसका? दो गुड्स की कॉम्बिनेशन का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. Where the satisfaction level with the remain same, such curve is called IC. Where the satisfaction level will remain same at all level. Okay, means अब देखिए बात क्या है, हम इस टेबल के थ्रू इस डेफिनेशंस को कैसे पाते हैं. ठीक है ना? अभी हम इस चीज को समझेंगे, लेकिन क्या है एक बार फिर समझते हैं. क्या है? दो गुड्स के द्वारा ली गई जो यूटिलिटी है वो सेम लेवल पे क्या होती है? इक्विवेलेंट रहती है. इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिस ग्राफ के थ्रू, जिस कर्व के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व कहलाता है. गेटिंग यू बोला? मतलब आइए देखते हैं. जैसे मान लीजिए ये मेरे कॉम्बिनेशंस, मतलब हम दो प्रोडक्ट लेते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए. जैसे मुझे बहुत तेज भूख लगी है. ओके, और मैं एप्पल लेता हूं और बनाना लेता हूं. फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. मैं दो प्रोडक्ट ले रहा हूं. पहला क्या ले रहा हूं? एप्पल ले रहा हूं और दूसरा बनाना ले रहा हूं. ओके, तो अब देखिए मेरे पास अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बन के आते हैं. अपने यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं. तो मेरा पहला कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है क्या? कि जब मैं एक एप्पल खा रहा हूं तो 10 बनाना खा रहा हूं.
कितना? When I am taking one apple, then quantity of banana is 10. Okay. When I am increasing what second unit, मतलब मैं दूसरा एप्पल ले रहा हूं तो बनाना कितना हो जा रहा है? 7. मतलब एक मैं बढ़ा रहा हूं तो दूसरा घट रहा है. जाहिर सी बात है, जब मैं दो चीजें मेरे सामने रखी होंगी और मैं जब एक चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा या फिर दूसरे एक चीज की क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली मैं दूसरा चीज कम खाऊंगा. ये आपके केस में भी है, सभी के केस में है. क्लियर है ना? तो अब देखिए क्या है, तो मेरे पास सेकंड कॉम्बिनेशन क्या निकल के आता है? जब मैं 2 एप्पल खाऊंगा तो मैं मेरा जो बनाना कितना खाऊंगा? 7. इसी तरीके से जो सी, जब मैं थर्ड कॉम्बिनेशन में जाऊंगा तो मैं 3 एप्पल खाऊंगा तो मैं 5 बनाना खाऊंगा. चौथा डी, 4 एप्पल खाऊंगा तो 3 बनाना खाऊंगा. एंड लास्ट ई, 5 एप्पल खाऊंगा तो 1 बनाना खाऊंगा. तो आपको समझ में आ रही होगी. मीन्स एट ऑल लेवल आई एम गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. At all level and all combinations, I am getting all level same level of satisfactions. Okay? मतलब मेरी जो हंगरनेस है, मेरी जो भूख है, वो इन 5 कॉम्बिनेशंस के थ्रू क्या हो जा रही है? सेटिस्फाई हो जा रही है. तो मैं इस 5 कॉम्बिनेशंस को, इसी को मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पे. कैसे? आइए देखते हैं. हम एक्स एक्सिस पे एप्पल मान लेंगे और y एक्सिस पे बनाना को मान देंगे. ठीक है ना? we will represent on apple x axis and banana here. Okay, see here. अब banana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And apple 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. You can see according to the quantity wise, I have quantity according to the banana 1 2 3 4 7 continuously, because I will the same gap in all lines. So 1 2 3 continuously I have assumed 10. Okay. See here, my dears. So when I am taking one banana, then the quantity of banana, I am taking one apple, then quantity of banana is 10. So here, okay, see here. On this point, when I am taking 2 banana, 2 apple, the banana 7, 2. It will be here. Okay. When I am taking third apple, the banana 5. Third apple means 5. Here. Okay. Fourth apple 3. Fourth apple 3 is here. It will be. And fifth apple 1. Fifth apple 1. So this curve will कुछ यूं बनेगा ये कर्व. ठीक है ना? ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? IC, इन शॉर्ट फॉर्म इंडिफरेंस कर्व. अच्छा, अब क्या है? इसको देखते हैं. 10, फिर 7 पे 2. ओके. फिर थर्ड पे 5. ओके. फिर फोर्थ पे 3. सॉरी, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है तो इस चीज को देख लीजिएगा. 5 पे 1, फिर 5th पे 1, ये यहां जाएगा
ओके, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, और फिफ्थ पे ये 1। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे, आईसी कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। अच्छा, अब देखिए हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर यूनिट पे हम पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या, इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स कौन सा, एप्पल और बनाना। मीन्स जब मैं एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाऊंगा तो पहला घटेगा। तो ये क्या है, इट्स ए कॉम्बिनेशन, मतलब हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ऑल लेवल एट ऑल स्टेज आई एम गेटिंग, ठीक है ना। तो क्या है, डेफिनेशन क्या निकल के आता है, इट्स a graphical representation of the combination of two goods where the satisfaction level will remain same at all level. Such curve is called IC indifference curve. Getting all that? इसको हम क्या कहेंगे, indifference curve. So आपको समझ में आ गया होगा प्लांटेशन ऑफ द indifference curve. अब हम पढ़ेंगे क्या, assumptions. These all are the most important point. Assumptions of IC1. What? Rationality. मीन्स कंज्यूमर शुड बी रैशनल, इरेशनल तो नहीं होना चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उसको सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। रैशनलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, द नंबर ऑफ क्वांटिटी, the number should not be in quantity terms, it should be in ordinal utility, ordinal terms. Okay, third, non-steadity. Non-steadity means the consumption of the commodity should not be overlapped. Okay, I mean to say means एक ही बार सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सप्लाई एक कांस्टेंट लेवल में होना चाहिए, एक डिफरेंट लेवल में, एक मतलब स्थिर फिक्स लेवल में होना चाहिए। तो नॉन स्टेडिटी। ओके, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, कंज्यूमर जो सिलेक्ट करता है, जो चॉइस करता है, उसको लेने का राइट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर ए के साथ बी है, एप्पल के साथ बनाना है, तो उसको साथ एप्पल के साथ पोमोग्रेनेट या फिर कुछ भी और अमरूद अच्छा लगता है, गुआवा अच्छा लगता है, तो एप्पल के साथ गुआवा भी ले सकता है। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने अभी पढ़ा डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं तो दूसरे केस में हमारी यूटिलिटी घट जाती है। तो सेम हियर, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी दूसरा गुड्स हम लेने जाते हैं तो मेरी यूटिलिटी क्या होती है, वो घटती जाती है। सो ये है assumptions in the case of indifference curve। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम सेकेंड लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।